کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آپ؟ جی میرا مطلب ہے آپ اس مکان میں رہتے ہیں؟ ہاں جی میں رہتا ہوں. کیوں کیا بات ہے؟ آپ یہاں کب سے رہتے ہیں؟ اجی یہ سب سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کچھ زیادہ ہی پوچھ گچھ کرنی ہے تو سرکاری دفتر میں جا کر پوچھیے. ویسے یہ مکان مجھے ملا ہے. آپ برا نہ مانیے. جی دراصل یہ مکان امیر چچا کا. آپ کا ہے؟ ضرور ہوگا جی. بہت سے مسلمانوں کے مکان خالی ہو گئے ہیں اور پھر دلی بھی پوری خالی ہو چکی ہے. بہت سے مکان منتخب کر کے کرائے پر دے دیے گئے ہیں. میں نے بھی یہ مکان کرائے پر لیا ہے. اور کچھ پوچھنا ہے تو سرکار کے دفتر جا کر پوچھ گچھ کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سکینہ. نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے. انہیں کچھ ہو گیا ہے. وہ اپنے ہوش میں نہیں. مظلوم لڑکیوں کی قسمت ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے سکینہ. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. میں بھی جب اپنا سب کچھ لٹا کے اپنے گھر پہنچی تھی تو میرے باپ کو کچھ ہو گیا تھا. وہ بھی اپنے ہوش میں نہیں رہے تھے. کتنی عجیب بات ہے. جنہیں بے ہوش ہونا چاہیے انہیں زیادہ ہوش آ جاتا ہے. جنہیں ہوش میں ہونا چاہیے وہ زیادہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ میرا بنے گا کیا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ تمہارے بھائی کے علاوہ تمہارا اور کوئی نہیں ہے؟ ماں باپ کوئی اور عزیز رشتہ دار؟ نہیں کوئی نہیں. اور کوئی ہے بھی تو. کون ہے؟ کوئی ہے بھی تو نہ جانے کہاں ہے. کون ہے تمہارا منگیتر؟ ہاں میری آخری امید. یا تمہارا آخری دھوکہ میری طرح؟ کیوں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب میرے باپ نے مجھے نکال دیا تو میرا آخری سہارا سہیل کے سوا اور کوئی نہیں تھا. ہاں وہ میرا منگیتر تھا. میں نے اسے بچپن سے چاہا تھا اور وہ بھی میری محبت کا دم بھرتا تھا. مجھے امید تھی وہ مجھے قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گا. لیکن سکینہ جب خون کے رشتے جواب دے جاتے تو دل کے رشتے بھی باقی نہیں رہتے. نہیں ایسا نہ کہو. میں مر جاؤں گی. موت اتنی آسان نہیں ہے سکینہ. جنہیں زندگی جواب دے جاتی ہے انہیں موت بھی سہارا نہیں دیتی. میں نے بھی کئی بار مرنا چاہا لیکن قسمت میں ایک بار کی موت کی بجائے بار بار مرنے پہ مجبور کر دیا. یا اللہ میں کیا کروں؟ صبر سکینہ صبر. دل کو پتھر بنا لو. جو سکون امید سے نہیں مل سکتا اسے مایوسی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو. کاش وہ یہاں ہوتے. کاش میں ان سے ایک بار مل کر اپنا سارا حال بتا دیتی. اس کے بعد کیا ہوتا یہ تم ابھی سوچنے کے تیار نہیں ہو لیکن تمہیں سوچنا ہوگا. صبر کرو اقبال. پتھر کی سل رکھ لو دل پر. زندگی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ شاید موت بھی نہ کر سکتی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا اختر. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سکینہ مر نہیں سکتی. ناصر کہاں ہے؟ ناصر تو کئی روز گھر نہیں آتا. میں اسے گھر لے آتا ہوں لیکن وہ پھر چلا جاتا ہے. سکینہ کے اغوا کے بعد سے کچھ پاگل سا ہو گیا ہے. مجھے اس کی باتوں کا یقین تو نہیں مگر میں کہاں جاؤں کہاں تلاش کروں ان لوگوں کو؟ کوئی بھی تو نہیں رہا. آؤ اقبال ہم دونوں مل کر ناصر کو تلاش کرتے ہیں. میں تو کبھی کبھی گھر کی خیر خبر لینے آ جاتا ہوں. وہ بھی اس ڈر سے کہ خالی رہا تو کوئی قبضہ نہ کر لے. اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے لیکن جب چشم کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کا. دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار.
لیکن نہیں خواہا کوئی واجن سے گراں کا، ہستی سے عدم تک نفس جن کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا، اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے لیکن، جب چشم کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کا، دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، لیکن نہیں خواہا کوئی واجن سے گراں کا، ہستی سے عدم تک نفس چمکی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا، اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے لیکن، جب چشم ناصر میں اقبال ہوں، اقبال اقبال؟ ہاں ناصر، اقبال اقبال مبارک ہو، فاتح بن کر آئے ہو، غازی بن کر آئے ہو، لکھنؤ فتح ہو گیا؟ بولو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کیوں نہیں کہ بہادر شاہ کے لیے تاج لے کر آئے ہو؟ وہ تو چلے گئے، رنگون چلے گئے، عیسیٰ چچا چلے گئے، ایوب چلا گیا، خالہ جان چلی گئی، اور ہاں سکینہ چلی گئی، سکینہ چلی گئی، سب چلے گئے۔ بہت دیر میں آئے ہو اقبال، بہت دیر میں آئے ہو۔ ناصر گھر چلو، وہاں چل کر باتیں ہوں گی۔ گھر؟ ہاں اگر کوئی گھر ہے تو ضرور چلو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں مسلمانوں کے گھروں میں اندھیرا رہتا ہے، لال قلعے تک میں روشنی نہیں ہے، جامع مسجد ویران پڑی ہے۔ ناصر آؤ میرے ساتھ۔ ہاں چلو، ضرور چلو۔ سکینہ انتظار کر رہی ہوگی، سکینہ روز تمہارا انتظار کرتی ہے، مجھ سے پوچھتی ہے بھائی جان اقبال کب آئیں گے؟ سکینہ کہاں ہے ناصر؟ گھر ہوگی۔ نہیں، سکینہ تو مر گئی۔ اقبال، سکینہ مر گئی۔ اقبال وہ تو مر چکی، مر گئی اقبال۔ لے جا کے تجھے مصر کا بازار۔ وہ بہت مظلوم لوگ ہیں، غریب، مفلس، دنیا کے ستائے ہوئے، انہیں مدد کی ضرورت ہے مقدس باپ۔ انہیں مدد دی جائے گی۔ میں نے انہیں اس کا یقین دلایا ہے۔ جو کام توپوں اور بندوقوں سے نہیں ہو سکا، ہمیں اسے اپنی محبت سے کرنا ہے۔ انہیں اس کی ضرورت بھی ہے مقدس باپ۔ ہندوستان اب صلیب مقدس کے سائے میں ہے، ہمالیہ سے راسکماری تک یسوع مسیح کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اب ہمارا سب سے مقدس فریضہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو خداوند خدا کی طرف بلانا ہے، انہیں مسیحی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں تمہاری خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ لیکن مقدس باپ، کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی؟ انہیں جبرن تو مسیحی نہیں بنایا جائے گا۔ مصلحت اس کے خلاف ہے اور میں خود جبر کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، سختی ہوئی ہے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن تم ان کے درمیان رہ چکی ہو اور یہ تمہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن مقدس باپ، اگر ان پر سختی کی گئی تو میں اسے پسند نہیں کروں گی۔ لڑکی، تمہیں صرف اپنے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ خداوند خدا ایسے کاموں کو پسند کرتا ہے جن کا مقصد دین کی خدمت ہو۔ میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، یہی میرے لیے دین کی خدمت ہے۔
ہمارے ہر کام کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، صلیب مقدس کا سایہ دنیا میں اتنا پھیلا دینا کہ کوئی ایک متنفس بھی باہر نہ رہ سکے۔ ہم اوپر کے لوگوں سے تمہاری تعریف کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہاری خدمات کا اعتراف کیا جائے اور اگر ہو سکے تو مناسب صلہ دیا جائے، لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے اگر تم ثابت کر سکو کہ تمہاری ہر کوشش یسوع مسیح کے ناموس میں اضافے کے لیے ہے۔ میں اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں مقدس باپ، لیکن میرا مقصد صرف یسوع مسیح کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، میں اس کے سوا اور کوئی صلہ نہیں چاہتی۔ تو ابھی بڑی ناسمجھ ہے لڑکی، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہم جو کام کرتے ہیں تیرا بھلا اس کے سوا اور کسی چیز میں نہیں۔ کیا حال ہے اس لڑکی کا؟ بس روئی جا رہی ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اسے چین نہیں آتا۔ تم اسے کچھ بہلانے کی کوشش کرو اور یقین دلاؤ کہ ہماری پناہ میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تو اسے گھنٹوں سمجھاتی ہوں مقدس باپ، مگر وہ کچھ سنتی ہی نہیں ہے۔ بیچاری پریشان ہے، دل کو سکون ملے گا تو سب کچھ سننے اور سمجھنے لگے گی۔ اس وقت تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اسے یقین دلاؤ کہ وہ خداوند خدا کی رحمت میں آ گئی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔ جی مقدس باپ۔ وہ لڑکی کسی حالت میں گرجا سے باہر نہ جانے پائے۔ مقدس باپ، گرجا کے ماحول میں ابھی اس کا دل نہیں لگتا۔ میرا تو خیال تھا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اسے باہر لے جاؤں تو شاید اس کا دل بہل جائے۔ مگر جوزف کو ساتھ لے جانا، وہ اس پر نظر رکھے گا۔ بہتر ہے مقدس باپ۔ یاد کر کے بتاؤ ناصر، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ یاد نہیں آتا۔ سوچو ناصر، ذہن پر زور ڈالو۔ ہاں، وہ چلی گئی، خالہ جان چلی گئی، پھر میں اور سکینہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں… ہاں سوچو، غور سے یاد کرو۔ راستے میں سکینہ نے مجھ سے کہا، بھائی جان ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک گاڑی میں کچھ فوجی ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ فوجی؟ ہاں، نشے میں دھت ہمارا پیچھا کر رہے تھے وہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہاں، پھر میں نے ایوب کو مار دیا اور خالو جان کو مار ڈالا۔ ناصر، جب وہ تمہارا اور سکینہ کا پیچھا کر رہے تھے پھر کیا ہوا؟ ہاں، تب میں نے گاڑی بان سے کہا، میاں گاڑی تیز چلاؤ، مگر وہ پھر بھی ہمارا پیچھا کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، سکینہ کو پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں زخمی ہو گیا۔ اور سکینہ کا کیا ہوا؟ میں زخمی ہو گیا، سکینہ کو انہوں نے مار ڈالا۔ ناصر، کیا تمہیں یہ یقین ہے؟ ہاں، مار ڈالا انہوں نے، سکینہ کو مار ڈالا، مر گئی، میری بہن مر گئی، انہوں نے اسے مار ڈالا، میری بہن مر گئی میری بہن، وہ مر گئی۔ کیا سوچ رہے ہو اقبال؟ کیا سوچ رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، سوچنے کے لیے اب رہ ہی کیا گیا ہے، ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی،
कुरेदूं भी तो इस राख में कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इकबाल, वो तन्हा तुम्हारे साथ नहीं हुआ, पूरी कौम के साथ हुआ है। ये सोचकर तुम्हें सब्र कर लेना चाहिए। सब्र? किस किस बात का सब्र करूं अख्तर? दिल्ली गई तो फिर भी सब कुछ हार कर उम्मीद नहीं हारी थी, हौसला नहीं हारा था। लेकिन अब के ऐसी मार पड़ी कि तलवार के साथ दिल भी हार गया। फिर अब तुमने क्या सोचा है? मेरा दिल नहीं मानता अख्तर कि सकीना मर गई है। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। सिर्फ एक उम्मीद है, अगर वो जिंदा है तो शायद अमीर चचा के पास लाहौर चली गई हो। लाहौर मेरी आखिरी उम्मीद है। सोचता हूं नासिर को भी साथ ले चलूं। ना ना ना, नासिर नहीं जाएगा। वैसे भी तुम उसे ले जाकर क्या करोगे? अब वो कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं यहां उसकी देखभाल करता रहूंगा। मेरा जहन जवाब दे चुका है अख्तर। जिंदगी से अब कोई लगाव नहीं रहा। मेरे दोस्त, जिंदगी खुदा की एक अमानत है। हर इंसान को आखिर वक्त तक इस अमानत की हिफाजत करनी चाहिए। लाहौर पहुंचने की इत्तला जल्द देना इकबाल। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह मैं वहां पहुंचते ही इत्तला दे दूंगा। अख्तर, नासिर का जरूर ख्याल रखना, वो कहीं ऐसी वैसी हरकत करने बैठे। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी को होने ना पाए। आखिर कब तक? जब तक मैं उससे मिलकर उसके पूरे हालात ना मालूम कर लूं। जैसा मुनासिब होगा देखा जाएगा। वो ठहरा हुआ कहाँ है? वो आहिस्ता बोलिए बेगम। वो अपने एक दोस्त के पास ठहरा हुआ है। उसका दोस्त मुझे इत्तला देने आया था। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि मुझसे न मिले, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। हमारा ख्याल है आप निसार भाई से मशवरा कर लो। आप तो कमाल करती हैं बेगम। इस वक्त उसका नाम किसी के सामने लेना मुनासिब नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि निसार भाई के हम लोगों के ऊपर कितने एहसानात हैं। जब हम दिल्ली से आए थे किस हाल में आए थे। उन्होंने हमें मकान दिया, हमारे आराम आसाइश का ख्याल रखा। उनसे मशवरा कर ही लें। भाई निसार भाई के तमाम एहसानात सर आंखों पर, लेकिन मैं उससे मिल तो लूं, मेरा इत्मीनान हो जाए, फिर निसार भाई से भी मुलाकात कर दी जाएगी। हम कहते हमारा मतलब है कोई खतरे की बात तो नहीं है। तो बेगम खतरा तो है। उससे मिलना जरूरी है क्या? शुक्र कीजिए बेगम कि वो मुझसे मिलने खुद नहीं आ गया। अगर वो आ जाता तो क्या मैं उससे मिलने से इनकार कर देता? मगर अब डर है कि अगर मिलने नहीं जाऊंगा तो वो आ जाएगा, तो उस वक्त कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह, किस मुसीबत में पड़ गए हम लोग। आप फिक्र न करें, खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। जरा जल्दी आइएगा। तुम दुल्हन से मिलने नहीं गई? वकार भाई आए थे, मैंने कहा शाम को आऊंगी। अब्बा जी कहाँ गए हैं? तुम मिल आती तो अच्छा था। दुल्हन इतनी मोहब्बत से तो बुलाती। अब्बा जी कुछ परेशान से थे। क्या बात है? नहीं तो उस वक्त भी न जाने चुपके चुपके आपसे बातें करते रहे। शायद किसी के आने का जिक्र था। कौन आया है?
आपका तो दिमाग खराब हो गया है। अम्मी, आप मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। सितवत, क्या जरूरी है कि आप हर बात की इतनी खोज करें? आप लोग परेशान हो और मैं कुछ पूछूं भी नहीं। परेशान? कौन परेशान है? अम्मी, आप मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। कौन सी बात? किस बात को कह रही हैं आप? आप मुझे बताती क्यों नहीं कि इकबाल आए थे और अब्बा जी ने उन्हें अपने घर आने से रोक दिया है। सितवत, क्या ये गलत है? आपके अब्बा जान ने इकबाल को रोककर कोई गलती नहीं की है। कौन कहता है गलती की है? मैं तो नहीं कहती, मगर छुपाने से क्या फायदा? सकीना अगर वाकई मर नहीं गई है तो उसे आप ही लोगों के साथ होना चाहिए था। बेटे, हमने तो सकीना को अपने साथ लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो तैयार नहीं हुई। इकबाल, क्या नासिर वाकई पागल हो गया है? जी हाँ। अरे बेटे, अगर सकीना मर न जाती तो नासिर पागल क्यों होता? मुझे कुछ समझ में नहीं आता अमीर चचा। मेरा जहन तो अब सोचने से जवाब दे चुका है। बेटे इकबाल, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जल्द से जल्द भूल जाना अच्छा होता है। जो दुनिया खत्म हो गई इसके मातम से क्या फायदा? सब्र करो, सब्र से इंसान में जीने का हौसला पैदा होता है। ऐसे बेटे, तुम दिल्ली में कितने दिन ठहरे? 8-10 रोज। तुमसे कोई पूछगछ तो नहीं हुई? नहीं। तुम्हें कोई खतरा भी महसूस नहीं हुआ? जी नहीं, वो सख्ती का दौर अब खत्म हो चुका है। बड़े बड़े लोग अपने अंजाम को पहुंच गए और फरंगी जानते हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब अगर एक आध चिंगारी बाकी भी है तो सुलग सुलग कर खुद खत्म हो जाएगी। चलो, बड़ी खुशी की बात है कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं रहा। हम जैसों को पूछता ही कौन है। इकबाल, तुम लाहौर में रहना पसंद करोगे? दिल्ली हो या लाहौर अमीर चचा, शहर से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेटे, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लाहौर और दिल्ली के हालात बहुत मुख्तलिफ है। और देखो ना, वैसे भी तुम्हारा दिल्ली में है कौन? भाई लाहौर में हम लोग तो मौजूद हैं। मेरा मशवरा तो यही है इकबाल के यहीं रहो, माजी को भूल जाओ और मुस्तकबिल को बनाने की कोशिश करो। मेरा माजी जल गया, हाल सुलग रहा है, मुस्तकबिल सिर्फ राख है। चारों तरफ अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं। बेटे इकबाल, वक्त ने जो तुम्हें जख्म दिया है उन्हें वक्त ही मुंतमिल कर सकता है। तुम्हें वक्त की जरूरत है, सुकून की जरूरत है। देखो बेटे, भाई निसार हमारे लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम चाहो तो हमारे पास आ सकते हो, हमारे पास रह सकते हो। तुम्हारी चची तुमसे मिलना चाहती है और वो सितवत भी तुम्हें याद कर रही थी। बेटे इकबाल, अगर हम तुम्हें कोई सुकून दे सके तो हम समझेंगे कि खुदा ने हमसे बहुत बड़ा काम लिया है। बेगम, बेगम, भाई कहाँ आया आप उससे मिला? हाँ बेगम, मिल आया। क्या हाल है उसका? न पूछो बेगम, वो एक टूटी हुई तस्बीह की तरह बिखरा हुआ है। एक एक दाना अलग और हर दाने पर दुख की मोहर है। लेकिन बेगम, खुशी की बात यह है कि वो बता रहा था कि उससे दिल्ली में किसी किस्म की कोई पूछगछ नहीं हुई। अच्छा। हाँ, इसका मतलब यह है कि वो खतरे से बाहर, उससे मिलने जुलने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। तो आपने उसे आने के लिए कह दिया है ना? अरे हाँ, मैंने उससे कह दिया कि आ जाए घर पे। मैंने कहा कि तुम्हारी चची तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, तो फिर आज रात तय है ना? जी हाँ, बिल्कुल तय है। मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। वापसी कब तक होगी नवाब साहब? भाई 2 दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ जमीनों का झगड़ा है, वो भी तय हो जाएगा और फिर शिकार का लुत्फ अलग ही आएगा। रामलाल साहब, आप भी चलिए ना। हाँ भाई रामलाल, तुम भी चलो भाई, जरा तफरी रहेगी। पहले से मालूम हो जाता तो जरूर चलता, अब तो मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आदाब है राणा जी। ओहो, भाई कुंवर साहब भी मौजूद। आदाब, आदाब। हाँ भाई बैठो अमीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नवाब साहब मुबारक हो, आपका काम हो गया है। क्या वाकई? भाई आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ भाई, उधर से वादा हो गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई की देर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान ने चाहा तो उसकी कृपा से आपका काम अवश्य बन जाएगा। अरे लाला जी, आज तो बड़ी हिंदी की चिंदी छांट रहे हो। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। अच्छा, और मैं भी चला नवाब साहब। राम राम। आराम।
हाँ भाई निसार, तो जरा तफसील से बताइए क्या बात हुई? बात क्या होनी थी, बस यूं समझ लो जो बात होनी थी हो गई। मैंने कहा था दिल्ली में तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, यहाँ उसकी तलाफी हो जाएगी। सो हमारा कहना तो पत्थर की लकीर होता है। हुक्काम ने आपको जमीन देने का फैसला कर लिया है। खुदा का शुक्र है भाई निसार, आज का दिन तो बड़ा मुबारक दिन है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। आओ बेटे आओ आओ। अब्बा जान ने आपको खुशखबरी सुना दी? न सुनाई हो तो मिठाई मंगवाइए और मुझसे सुनिए। मियाँ मिठाई तो तुम जरूर खाओ, लेकिन खुशखबरी हमने सुन ली है। भाई निसार ने मुझे खुशखबरी सुनाई और मैं भी एक खुशखबरी लेके आया हूँ। अच्छा, तो तुम भी कोई खुशखबरी लाए हो? हाँ भाई, वो इकबाल आ गया है। इकबाल? ईसा चचा का बेटा? हाँ बेटे वही। भाई अपने दोस्त क्या ठहरा हुआ है, मुझे इत्तला भेजी थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। चचा जान आप उससे मिलने जाए तो मुझे जरूर साथ लीजिएगा। अच्छा, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा बेटे। अच्छा भाईजान, वो गाड़ियों का इंतजाम हो गया है। देखिए चचा जान, मुझे ले जाना मत भूलिएगा। जरूर बेटे जरूर। अच्छा, तो इकबाल आया है? हाँ भाई, मैं आज उससे मिल भी आया हूँ। बहुत खूब। क्यों, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हुआ क्या है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। इस इकबाल की वजह से एक बार सक उठा चुके हो और अभी तक होश नहीं आया। लेकिन इसमें इकबाल का क्या कसूर? ओहो, तुम बच्चों जैसी बातें मत किया करो। इसमें इकबाल का कसूर नहीं तो क्या तुम्हारा कसूर था? भाई निसार, उस वक्त हालात ही कुछ और थे। अब हालात कैसे हैं? यहाँ तो तुम्हारी जमीनों का फैसला हो रहा है, मुमकिन है कुछ और फायदा भी पहुंच जाए, लेकिन तुम हो कि इकबाल जैसे लोगों के चक्कर में खुद अपने पीछे पड़े हुए हो। भाई मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने अच्छी तरह मालूम कर लिया है कि इकबाल से मिलने जुलने में अब कोई खतरा नहीं। देखिए ना, मैं इतने अरसे दिल्ली में रहा, उससे कोई पूछगछ नहीं हुई। इसका मतलब है कि मतलब मैं कुछ नहीं जानता। बस मेरी आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, आप आइंदा इकबाल से नहीं मिलेंगे। कम से कम वो आपके घर नहीं आएगा, समझे? अरे भाई कोई है? चची जान। अरे विकामी आइए आइए। जीते रहिए। तस्लीम चची। अच्छा दुल्हन ये जीती रहिए बीबी। आइए बैठिए। विकामी आप भी तो आइए। वो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, आपकी बहू ने कहा मुझे चची जान के पास छोड़ दीजिए, अब मैं वापसी पहन लेता जाऊंगा। अच्छा मियाँ, जीते रहिए। और दुल्हन सब खैरियत है ना? ठीक हो ना? सितवत के अब्बा जान आपकी तरफ गए थे? जी हाँ। निसार भाई से मशवरा करना था। वो अब्बाजान से बात ना करते तो अच्छा था। किस बात को कह रही हैं दुल्हन? आप किस बात को कह रही हैं? इकबाल भाई वाला मामला है ना? हाँ हाँ दुल्हन, आप ठीक समझी, लेकिन बात क्या हुई? अमीर चाचा ने अब्बाजान से बात की थी, अब्बाजान ने उन्हें मना कर दिया। मना कर दिया? किस बात से? कह रहे थे कि इकबाल से मिलने की कोई जरूरत नहीं। ये बातें आपके सामने नहीं थी? नहीं, आपके भतीजे बता रहे थे। उन्हें तो बड़ा दुख हुआ, कह रहे थे चाचा जान ने नाहक बात की अब्बाजान से। आपके चाचा जान ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, बस खामोश हो गए। अच्छा। मुक़द्दस बाप, मैं आपसे सकीना के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। क्या बात है बेटी, क्या हुआ उस लड़की को? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने उसके लिए क्या सोचा है? क्या सोचा है? वो एक मजलूम लड़की है, मुझे उससे हमदर्दी है। इंसानों से बेलौस मोहब्बत करना हमारे मजहब की सच्ची तालीम है। आपने उसे पनाह दी है मुक़द्दस बाप, लेकिन क्या कहना चाहती हो बेटी? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तुम अपने साथ? कहाँ? मैं उसे उसके हम मजहबों के पास ले जाऊंगी। क्या? जी मुक़द्दस बाप, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं।
उसके हम मजहबों के पास पहुंच जाने में ही उसकी बेहतरी है। यह नामुमकिन है। मगर क्यों? इसके बारे में फैसला हो चुका है। फैसला? कैसा फैसला? हमने उसके बारे में फैसला किया है कि उसे सलीब मुक़द्दस की खादमाओं में शामिल किया जाएगा। तुमसे मिलकर यकीन करो खुशी हुई। कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अब डर सा लगता है। निसार चचा तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है। आप लखनऊ से कब चले थे? शिकस्त के फौरन बाद मुझे रिहा कर दिया गया था। फरंगियों ने मुझे मलका का मातूब समझकर पूछगछ नहीं की और मैं लखनऊ से निकलने में कामयाब हो गया। मलका अली और बख्त खान कहाँ गए? पनाह लेने के लिए नेपाल की तरफ रुख किया था। उसके बाद कुछ मालूम नहीं हो सका। और वो अहमदुल्ला शाह? वो भी लखनऊ से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं। तो आप लखनऊ से सीधे दिल्ली आ गए थे? हाँ, तो और क्या करता। लखनऊ में रहकर अब करना ही क्या था। सब कुछ तो खत्म हो चुका था। इस रुदात के बारे में आपका तासुर क्या है? औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद से मुसलमान कौम जवाल की मंजिलें तय कर रही है। हमारी ये नाकामी उस जवाल की आखिरी मंजिल है। लेकिन इसका कोई ना कोई सबब तो जरूर होगा। इसे दरियाफ्त करने और समझने में अभी बहुत अरसा लगेगा, लेकिन जो बातें सामने हैं उनमें सबसे बड़ा सबब इख्तिलाफ व इंतशार है, और इसके बाद कौम की बेहिसी है। तो क्या कौम को बेदार नहीं किया जा सकता? हर काम का एक वक्त होता है। मैं कौम पर नुक्ताचीनी करने के बावजूद कौम से मायूस नहीं हूं। एक दिन इसे बेदार होना है, लेकिन वो दिन कब आएगा इसे कोई नहीं जानता। आंधी तेज थी, हमने अपने खून से चिराग जलाए। ये चिराग बज़ाहिर तो बुझ रहे हैं और रात का अंधेरा और ज्यादा गहरा हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस अंधेरे के पीछे सुबह की रोशनी छुपी हुई है। हम बुझ गए तो क्या हुआ, आने वाले इस रोशनी को देखेंगे। यहाँ वहाँ न जाए, बस एक ही साबुन लाए। नाम भी अच्छा, काम भी अच्छा। सूफी सो आप आजमाएं, आप भी मान जाएंगे। Hey, what's for dessert? Ahmed Crystal Jelly. Oh, I need it bad. We all need it bad. Ahmed Crystal Jelly, fantastic fruity flavor, real good. Special power Sufi. अब तो हर बर्तन घर में शीशे की तरह नजर आता है। बेसन और सिंग भी जगमगा उठते हैं, है ना मैजिक? Special power Sufi. तज़किरा दहलिए मरहूम का, ए दोस्त तज़किरा दहलिए मरहूम का, ए दोस्त न छेड़ न सुना जाएगा हमसे ये फसाना, सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज। कभी ए इल्म हुनर, कभी ए इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली। कभी ए इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली। हमको भूले हो तो घर भूल न जाना। मुख्तार से बज़्म में मातम तो नहीं, बज़्म में मातम तो नहीं, बज़्म में सुखन है हाली। बज़्म में मातम तो नहीं, बज़्म में सुखन है हाली। या मुनासिब नहीं रो रो के रुलाना। अभी हजरत ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं शम्मा महफिल आफताब गजल आबरू सुखन हजरत नवाब मिर्जा दाग देलवी के रूबरू पेश कर रहा हूं।
عرض کیا فلک نے قہر و غضب، فلک نے قہر و غضب تاک تاک کر ڈالا، فلک نے قہر و غضب تاک تاک کر ڈالا، تمام پردے ناموس چاک کر تمام پردے ناموس چاک کر ڈالا، یکایک ایک جہاں کو ہلاک کر ڈالا، یکایک ایک جہاں کو ہلاک کر ڈالا، غرض کے لاکھ کا گھر اس نے غرض کے لاکھ کا گھر اس نے خاک کر ڈالا، جلی ہے دھوپ میں شکلیں جو ماہتاب کی تھی، جلی ہے دھوپ میں شکلیں جو ماہتاب کی تھی، کھچی ہے کانٹوں پہ جو پتیاں مختار لکھوں کہاں تلگ القصہ حال بربادی، لکھوں کہاں تلگ القصہ حال بربادی، لکھوں کہاں تلگ اس آسماں کی جلال، کسی کو قید مہن سے نہیں ہے آزادی، کسی کو قید مہن سے نہیں ہے آزادی، کہ داغ داغ ہے دل ہر کوئی ہے فریادی، کسی کو قید مہن سے نہیں ہے آزادی، کسی کو قید مہن سے نہیں ہے آزادی، کہ داغ داغ ہے دل ہر کوئی ہے فریادی۔ آپ نے ابا جی سے بات کی؟ کون سی بات؟ اوفو، آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ایک بات ہو تو یاد بھی رہے، ابھی میرا دماغ ہے، کوئی حافظے کا کاٹ گودام تو ہے نہیں کہ ہر وقت ہر بات موجود رہے۔ جی ہاں، آپ کا دماغ تو سرائے بن گیا ہے، سرائے، کوئی بات ٹھہرتی نہیں حافظے میں۔ ارے تو بگڑ کیوں رہی ہو؟ بتا دو نا کیا بات پوچھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ستوت پر اس بات کا کتنا اثر ہوا۔ ہاں اچھا، ستوت کی بات کر رہی ہو، کیا حال ہے اس کا؟ حال کیا ہوتا، کچھ کہتی سنتی تھوڑا ہی ہے، بس چپ چاپ سائی کی طرح ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہے۔ تو یوں کہو تمہارے جیسا حال ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی یہی کہ جب ابا جان نے شاہی سے پہلے ایک بار انکار کر دیا تھا تو تمہارا بھی یہی حال ہو گیا تھا۔ جی میرا یہ حال ہو گیا تھا یا آپ کا؟ ارے کمال کرتی ہیں بیگم آپ، مجھے تو پرواہ بھی نہیں تھی۔ جی ہاں پرواہ نہیں تھی، پھر وہ خودکشی کی دھمکی کس نے دی تھی؟ وہ تو ہماری ضد کی بات تھی، بھئی آخر نواب زادے بھی تو ہیں ہم۔ اچھا اچھا، یہ اپنے قصے بعد میں سنائیے گا، پہلے اقبال اور ستوت کا مسئلہ تو حل کر دیجئے۔ ابا جان کی مرضی تو نہیں ہے، لیکن میں اقبال سے ملا تھا، بہت اچھا آدمی ہے، میں تو اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ اچھا، پھر تو ستوت سے رقابت ہو گئی ہوگی آپ کو؟ ارے بیگم اس کے لیے تو ایک دنیا سے رقابت مول لی جا سکتی ہے، ایسے آدمی روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ میرے دل میں اس کی عزت تو بہت پہلے سے تھی، اب محبت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کچھ کیجئے نا۔ ہاں موقع کی تلاش میں ہوں، ابا جان سے بات کروں گا۔ خدا کرے اس بات کا کچھ حل نکل آئے۔ ہاں ہاں ہم بات کریں گے تو حل نکل ہی آئے گا۔ مسلمانوں میں اتنی بیداری نہیں ہے جتنی ہندوؤں میں، اور پھر حکومت بھی تو مسلمانوں کی تھی، بغاوت میں بھی مسلمان پیش رہے، جس کی وجہ سے انگریزوں کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں۔ یہ آج آپ پہلی بار ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ بات کر رہے ہیں نواب صاحب، پہلے تو آپ کے سوچنے کا یہ بھاؤ نہیں تھا۔ حالات جب بدلتے ہیں تو بعض ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں لالا جی، جن پر عام حالات میں آدمی غور نہیں کرتا۔ بغاوت کے دنوں میں کیا ہوا اور اس کا سب سے بڑا نقصان کسے اٹھانا پڑا؟ انگریز سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب انہیں باغی بناتا ہے، اور ہندو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہر فتنے کی جڑ مسلمان ہے۔
ये आज आप नई जुबान बोल रहे हैं नवाब साहब। ये जबान अभी लोगों की समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तक कि अंग्रेज भी हमारे मंशा और मकसद को शक व शुबे की नजर से देखते हैं। लेकिन इन बातों में जो गहराई और सच्चाई है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो जुबानों से निकलकर दिलों में उतर जाएगी। अब्बाजान, अमीर चचा तो आपके पास नहीं आए थे। क्यों, क्या बात? तो मैंने उनसे कहा था कि वो आपसे मिल लें। तुम किस सोच में हो? कोई खास बात है? मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा नवाब साहब, मैं अब चलता हूं। राम राम। अब्बाजान, आपने अमीर चचा को इकबाल से मिलने से रोका है? हाँ, क्यों? वो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था। जिक्र या शिकायत? जो भी समझ लीजिए। वो कह रहे थे कि इकबाल बहरहाल हमारा अजीज है। मुझे अंदाजा तो था कि अमीर को मेरा मशवरा पसंद नहीं आया। पसंद नापसंद की बात नहीं है अब्बाजान, आदमी का एक ताल्लुक होता है। लेकिन अमीर का इकबाल से क्या ताल्लुक है? रिश्तेदार मेरे भी हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखता जिसके ख्यालात मुझसे इतने मुख्तलिफ हों। और फिर मैंने अमीर को मशवरा दिया तो उसके भले के लिए दिया। आप इकबाल को पसंद नहीं करते इसलिए कि आप उसे बागी समझते हैं, और किसी भी बागी से कोई भी ताल्लुक आपको खतरे की बात मालूम होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारे खानदान में सिर्फ इकबाल ही एक ऐसा आदमी है जो इज्जत के काबिल है। इकबाल जैसे लोगों से इख्तिलाफ तो किया जा सकता है, नफरत नहीं की जा सकती। और तुम्हें शायद इख्तिलाफ भी नहीं है। कोई बात है अब्बाजान जो मुझे उससे हमदर्दी पर मजबूर करती है। मैं जब भी उसके हालात सुनता था तब भी मुझे उससे मोहब्बत थी, और अब जब वो बिल्कुल तबाह होकर लाहौर आया है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसकी हमदर्दी में जो कुछ कर सकता हूँ करूँ। साहबजादे, मैंने अमीर को मशवरा दिया है, मजबूर नहीं किया। और इकबाल से तुम मिलना चाहते हो तो जरूर मिलो, मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो फिर उसका रोना मुझसे ना रोया जाए। हर आदमी अपना बुरा भला खुद सोच सकता है अब्बाजान, और फिर अमीर चचा कोई बच्चे तो है नहीं। हर आदमी के अपने कुछ मसाइल होते हैं जिन्हें सिर्फ वो खुद बेहतर तौर पर समझ सकता है। वो हो सकता है कि अमीर चचा का कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से वो इकबाल से ताल्लुक जरूरी समझते हो। मैं समझा नहीं, कैसा मसला? ठीक से मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अमीर चचा और चची की बातों से अंदाजा हुआ है कि शायद उनकी बेटी सिद्दत का कोई मसला है। भाई, मुझे इन नज़ाकतों का कोई इल्म नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अमीर को उससे जरूर मिलना चाहिए। और फिर इकबाल से मेरी दुश्मनी तो नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ वक्त का तकाजा था। तो एक बात आप मेरी मानिए अब्बाजान। क्या? आप भी इकबाल से मिलेंगे? मुकद्दस बाप, सकीना हाजिर है। करीब आओ बेटी। तेरा क्या हाल है? क्या पूछ रहे हैं? इसका हाल बहुत खराब है। क्यों? क्या बात है? तुझे यहाँ कोई तकलीफ है? जवाब तो सकीना। नहीं। तेरे चेहरे पर तो गम के गहरे साए बादलों की तरह छाए हुए हैं। क्या तू हमें नहीं बता सकती हम तेरे गम को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जवाब तो सकीना। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। मैं पूछना चाहता था तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? जी, मैं क्या सोच सकती हूँ, लेकिन तुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर सोचना चाहिए। क्या तू अपने लोगों में जाने की हिम्मत कर सकती है? मेरा कोई अपना नहीं। लेकिन हमने तुझे पनाह दी है इसलिए कि खुदावंद खुदा हमें मजलूमों पर रहम करने की तालीम देता है। तूने इस पर गौर किया है? आपने मुझे पनाह दी है, इसके लिए मैं तमाम उम्र आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी नहीं, उसकी जिसके हुक्म के बगैर मैं तुझे पनाह नहीं दे सकता था। ये खुदावंद खुदा का हुक्म है जिसकी वजह से मसीही मजलूमों का साथ हमेशा देता है। तूने कभी मजहब के बारे में गौर किया है? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी रूह एक बड़े फैसले के लिए तैयार हो जाती है। अगर उस वक्त वो अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखे तो खुदावंद खुदा उसकी हिदायत करता है।
तूने बड़े दुख उठाए हैं, मगर ये दुख तेरे लिए रहमत बन सकती है। ये तुझे उस रास्ते पर ले जा सकती है जो तेरे लिए निजात अबदी का रास्ता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। इसे हमारा मतलब समझा दो, उसके बाद ये जो फैसला करे हमें उससे मुत्तला कर दो। आओ सकीना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। मुझे नहीं कराओगी? क्यों नहीं, अभी सबको खीर खिलाएंगे। लो भाई, खीर तो गई। ये तो होना ही था। अहमद जब बनाए तो क्यों न सबको भाए अहमद खीर मिक्स। अहमद खीर मिक्स की तो बात ही कुछ और। रहे साफ और सुथरा हरदम, सेहत और पाकीज़गी, यही है जिंदगी। सूफी 500 सेहत और हाँ, अब मुझे बताओ वो क्या कह रहे थे? उन्होंने तुम्हें ईसाई बन जाने का मशवरा दिया है। क्या? हाँ। ये नहीं हो सकता, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। लेकिन उन्होंने तुम्हें पनाह दी है। इसका मतलब? मतलब साफ है, तुम अगर हमारी पनाह चाहती हो तो तुम्हें हमें शामिल होना पड़ेगा। ये नामुमकिन है। तो फिर तुम हमारे साथ अब नहीं रह सकोगी। मैं रहना भी नहीं चाहती। तो फिर तुम कहाँ जाओगी? कौन तुम्हें पनाह देगा? तुम्हारा भाई तुम्हें पहचाने से इनकार कर रहा है। दुनिया में तुम्हारा और कौन है? मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। मर जाना इतना आसान नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तुम्हारे मजहब ने क्या दिया? हमारे मजहब को देखो, हमने तुम पर रहम किया, हमने तुम्हें पनाह दी, इसलिए कि हम एक सच्चे मजहब के मानने वाले। जब से तुम यहाँ आई हो मैं यही सोचती रहती हूँ, लेकिन अब तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। तुम मेरी से बात करो, वो तुम्हारी हमदर्द है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। उस वक्त तक मैं भी कुछ सोचने की कोशिश करती हूँ। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है इकबाल? भला अब क्या सोचा जा सकता है? तुमने अमीर चचा से बात की? कैसी बात? वो चाहते हैं कि तुम लाहौर रह जाओ। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन सवाल कहीं ठहरने या जाने का नहीं है। सवाल यह है कि इस नाकाम जिंदगी का बोझ उठाने के लिए ताकत कहां से लाऊं? जिंदगी को बदलने की जरूरत है इकबाल। रास्ते खत्म हो जाए तो सफर के लिए नई मंजिलें तलाश कर ली जाती हैं। मैं हर सफर से थक चुका हूं, हर मंजिल से मायूस हो चुका हूं। अमीर चचा ने तुमसे साफ साफ बात नहीं की, लेकिन मुझसे वो सब कुछ कह चुके हैं। तुम अगर उनकी बात मान लो तो तुम्हारी जिंदगी अब भी दुरुस्त हो सकती है। उन्होंने क्या कहा है तुमसे? सितवत के बारे में। सितवत? हाँ, वो चाहते हैं कि तुम सितवत से शादी कर लो। वकार, सितवत से शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी को एक नया रास्ता मिल जाएगा इकबाल। ये कैसे हो सकता है वकार? क्यों? आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैं शादी नहीं कर सकता। सितवत बहुत अच्छी लड़की है,
मेरा मतलब ये नहीं है, सिफत वाकई अच्छी लड़की है, लेकिन वो तुम्हें पसंद भी करती है। मुझे मालूम है, मगर इकबाल, मैं तुम्हारे और सकीना के बारे में बातें सुन चुका हूं। अगर सकीना मौजूद होती तो मैं तुमसे ये बात कभी न कहता। मेरे दिल में सकीना के सिवा और कोई नहीं। इकबाल, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन देखो ना इकबाल, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर आदमी को सब्र करना पड़ता है। सब्र सब्र सब्र, किस किस बात पर सब्र करूं वकार? नाकामियों के जख्म तन्हाई में नासूर बन जाते हैं क्योंकि इंसान उन्हें कुरेदता रहता है। सितरत से शादी तुम्हें खुशी न दे सके, लेकिन सुकून जरूर दे सकती है इकबाल। खुशी और सुकून मेरी किस्मत में होता तो जिंदगी में से एक खेल क्यों खेलती? इकबाल, ये दुख कब तक उठाओगे? सोचो, गौर करो, किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करो। तूने उसे समझाया? जी मुकद्दस बाप। क्या कहती है वो तैयार है मुकद्दस बाप। शाबाश बेटी, शाबाश। कल कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया जाएगा, सकीना उन लोगों में शामिल होगी। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं मुकद्दस बाप? रस्म की अदायगी से पहले सकीना पर पूरी निगरानी की जाए। आपको उस पर कोई शुबा है मुकद्दस बाप? नहीं, मगर हमें एहतियात की जरूरत है। ये लो पिछले दरवाजे की चाबियां। मैंने तुम्हारे फरार का इंतजाम कर दिया है। अभी तुम्हें नई इत्तला भिजवाती हूँ। खुदावन तुम पर रहमत की नजर रखे। मुझे उम्मीद है मेरी शुरू कामयाब होगी। बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आओ मेरे साथ। आओ बेटी। उससे बात करूंगा। वकार ने उससे बात की थी, उसने साफ इनकार कर दिया। वो बहुत जिद्दी है, कहीं आपको भी इनकार न कर दे। मेरा ख्याल तो ये है कि बहुत ज्यादा परेशान है, वरना सितवत से बेहतर रिश्ता उसे कहाँ मिल सकता है। जी हाँ भाई साहब, आप दुरुस्त फरमाते हैं। वो वाकई बहुत परेशान है। बेगम दरअसल जिद की वजह से इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी तबीयत इन बातों की तरफ से बुझ गई है। जब आदमी के हालात ऐसे हों तो उसे चाहिए कहीं और दिल लगाए। जिंदा तो रहना ही पड़ता है आखिर। बेगम, नौजवानी में ऐसी बातें कम ही समझ में आती है। सब समझ में आ जाएंगी। मैंने उसे बुलाया है, जरा मुझसे बात हो जाने दो। सरकार, इकबाल साहब आए हैं। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं भी बात करके आता हूँ। बेहतर।
यहाँ वहाँ न जाए, बस एक ही साबुनाए। नाम किस बात से डर लगता है? क्या इस बात से कि वो तुम्हें कबूल नहीं करेगा? नहीं, ये बात नहीं। हो सकता है कबूल कर ले, हो सकता है ना करे, मगर मैं उसके पास जाऊंगी नहीं। मगर क्यों नहीं जाओगी? मैं अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती। सकीना, हाँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। फिर तुम कहाँ जाओगी? आप फिक्र न करें, इनका इंतजाम हो जाएगा। कहाँ पर? एक साहब बहुत हमदर्द किस्म के आदमी हैं और बहुत बाअसर भी हैं। उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। क्या वो साहब मुसलमान हैं? जी हाँ। तो फिर ठीक है, तुम दोनों उनके पास जाओ, उनसे मिलो, फिर देखें आसमानी बाप क्या करता है। खुदाबंद खुदा तुम पर रहमत की नजर रखे। मेरी नसीहत याद रखिए, सब्र और इस्तक़लाल से हालात का जायजा लीजिए और दामन उम्मीद हाथ से न जाने दीजिए। आप वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त आपका इंतजार करेगा। अच्छा, खुदा हाफिज व नासिर। हुजूर, दो औरतें आपसे मिलने आई हैं। उन्हें भेज दो। जी बेहतर। आओ आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम। तुम में से सकीना कौन है? जी, ये सकीना है और मेरा नाम अस्मत है। मैंने तुम दोनों का हाल सुन लिया है, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकता हूं। सकीना बेटी, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। करने वाला है। बेटे इकबाल, मैंने तुम्हें इस वक्त एक खास मकसद से बुलाया है। जी। तुमसे वकाल ने कुछ बात की थी, मैं ये पूछना चाहता हूं तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? जी, मैंने तो वकार को उसी वक्त जवाब दे दिया था। हाँ, वकाल ने मुझे बताया तो था, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हें किसी सही फैसले पर पहुंचने में दुश्वारी हो रही है।
اس لیے میں نے سوچا میں خود چل کر تم سے بات کروں. اور اب تو تمہیں کافی وقت مل گیا ہے سوچنے کے لیے. مجھے جو کچھ سوچنا تھا نثار چچا میں سوچ چکا ہوں. تو اس کا مطلب ہے تمہیں اب بھی انکار ہے؟ میں مجبور ہوں نثار چچا. اقبال میاں، عیسیٰ بھائی زندہ ہوتے تو میں ان سے بات کرتا، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ہر بات تم سے کہنی پڑتی ہے. عیسیٰ بھائی ہوتے تو مجھے یقین تھا کہ میری بات پر انکار نہ کرتے. آپ بھولتے ہیں نثار چچا، انہوں نے تو امیر چچا سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا. وہ اور بات تھی اقبال، اس کی وجہ خیالات کا اختلاف تھا. لیکن اب تو تم نے دیکھ لیا نا کہ تم لوگوں کے خیالات نے تمہیں کہاں پہنچا ہے. نثار چچا، اس کا جواب آپ کے بھائی زندہ ہوتے تو آپ کو خود دیتے، لیکن میں کم از کم اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں، نادم نہیں. رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے. خیر، میں تم سے اس مسئلے پر بحث کرنا نہیں چاہتا. میں نے تو تمہیں صرف اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے انکار کو اپنے کانوں سے سننے کے بعد تمہیں بتا سکوں کہ امیر الدین تمہارے محسن ہیں. تم زخمی ہو کر پناہ لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے، اس کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہے ان پر کیا گزری. وہ بے عزت ہوئے، ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور انہیں دلی سے در بدر ہو کر لاہور آنا پڑا. شاید ستوت سے شادی سے انکار کرتے وقت تمہیں سب کچھ یاد نہیں رہا. مجھے سب کچھ یاد ہے نثار چچا. ایک ایک بات یاد ہے. امیر چچا کو میری وجہ سے جو پریشانی اٹھانی پڑی اس کا مجھے دکھ ہے. شاید میں اس احسان کا بدلہ کبھی ادا کر سکوں، شاید نہ کر سکوں، لیکن اپنے دل میں انہیں اپنا محسن دل میں نہیں، صرف زبان سے. دل میں سمجھتے تو ان کی خواہش کو اتنی آسانی سے ٹھکرانے کی ضرورت نہ کرتے. میری مجبوری کو میری احسان فراموشی نہ کہیے نثار چچا. مجبوری؟ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ آپ اسے نہیں سمجھ سکیں گے. یہ سب باتیں دل کا سودا ہوتی ہیں. میرے سینے میں تو دل ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہو. مطلب جو آپ چاہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے صاحبزادے، آپ جا سکتے ہیں. شکریہ. مجھے اپنے راستے میں کھڑا دیکھ کر آپ کو حیرت ہوئی؟ نہیں، دکھ ہوا کہ جس آدمی کی کوئی منزل نہ ہو اس کے راستے میں آنے سے کیا فائدہ. ایک منزل کھو جانے سے سفر تو ختم نہیں ہو جاتا. سفر ختم نہیں ہوتا ستوت، لیکن مسافر ضرور ختم ہو جاتے ہیں. ایک بات کہوں آپ سے، میں جانتی ہوں سکینہ کے سوا آپ کے دل میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے دل میں آپ کے سوا کوئی اور نہ ہو اور اس کا حشر بھی سکینہ جیسا ہو. ستوت، تم زخمی ہو کر پناہ لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے، اس کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہے ان پر کیا گزری. وہ بے عزت ہوئے، ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور انہیں دلی سے در بدر ہو کر لاہور آنا پڑا.